अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वर्क डन के ऊपर हमारा जो है ये सेकंड वीडियो है। वी आर स्टार्टिंग विद दिस। इससे पहले मैं इसका थोड़ा सा प्रीव्यू लूँगा और फिर हम अगले लेसन की तरफ एडवांस करेंगे। लास्ट टाइम हमने वर्क डन को डिफ़ाइन किया था। ये एक लेसन आपका हो चुका है और इसके बीच में हमने फोर्स वर्क डन का फॉर्मूला F into S and then with different examples and then we discusses that when a work done is zero, no force is applied, no distance is covered and object move in a circle। ये तीनों केसेस हमने डिस्कस किए थे। सो यू टेक इट एज अ नोट्स। ये PDF आपके पास नोट्स की फॉर्म में भी आएगी, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। सो दैट वाज ओवर फर्स्ट लेसन। सो लेट्स स्टार्ट। इससे आगे ज़रा सेकेंड लेसन को स्टार्ट करते हैं। When we started energy, we said that we discusses two form of energy mainly. One was kinetic and one was potential. Now kinetic energy was equal to half mv square. It is related to motion, and motion means speed or velocity. Fine. Then we discusses its formula. If we increase mass, kinetic energy will be increased. If we decrease mass, kinetic energy will be decreased. If we increase speed, kinetic energy will be increased. If we double the speed, then kinetic energy will be 4 times larger due to the square, because 2v को आप स्क्वायर करेंगे तो that will become 4v square, 4 times increase हो जाएगा, ठीक है। If we take speed as a v by 2, half the speed, then the kinetic energy, this corresponds to kinetic energy will reduce by 1/4 times reduced, ये हो जाती है, ठीक है। यह चीज़ें हमने आज के लेसन में पढ़ ली थी। आज जो मैं अभी आपके साथ इस लेसन में डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो इंटर कन्वर्जन ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी है। टॉपिक का नाम बनता है इंटर कन्वर्जन between kinetic energy and gravitational potential energy, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक बनेगा। ये बेसिकली है क्या कि kinetic energy when is converted into gravitational potential and when gravitational potential is converted into kinetic. There are a lot of questions related to this content of the topic. Before attempting this, to understand kinetic convergence with gravitational potential or gravitational potential conversion with kinetic energy, let's first define a law of conservation of energy. Law of conservation of energy says energy neither created nor destroyed. Energy neither created nor destroyed. It can only be converted from one form to other, and total energy remains constant. And total energy remain constant. इसकी मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट्स सपोज आपके पास ये ऑब्जेक्ट है,
इसको आप किसी पेट्रोल इंजन के साथ मूव कर रहे हैं, एंड द पेट्रोल इंजन एनर्जी इंजेक्ट कर रहा है 2000 जूल। इसके जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में एनर्जी डिस्प्लेसिंग इट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, फ्रॉम ए टू बी, एनर्जी यूज्ड इज 1800 जूल, एंड द फ्रिक्शनल फोर्सेस के अगेंस्ट उसकी एनर्जी 200 जूल जाती है। तो आपकी जो टोटल एनर्जी जो आपने गिवन दी थी 2000 जूल, दैट रिमेन कांस्टेंट, इट इज़ ओनली कन्वर्टेड इनटू हीट एंड नॉइज या साउंड में एज अ वेस्ट हुई एनर्जी, और प्लस जो यूजफुल वर्क डन हुआ दैट इज़ 800 जूल, एंड टोटल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट, ना इससे कम हुई ना इससे ज़्यादा हुई, सिर्फ कन्वर्ट होगी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। लेट्स से इफ़ इट वाज एन इलेक्ट्रिकल मोटर एनर्जी, देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी वाज कन्वर्टेड, and electrical energy was converted into ये जो मोशन थी which is called kinetic energy, इससे इसको मूव कराया, प्लस जिसको हम वेस्ट कहते हैं बेसिकली हीट एंड साउंड। सो दे आर different forms of energy which are converted through electrical energy, but the total energy remains constant. That was law of conservation of energy. So before going to interconversion between kinetic energy and gravitational potential energy, we just understand the law of conservation of energy, and mostly students they know it due to the early science. Let's talk about energy convergence. ठीक है, तो मैं यहाँ पे दो केसेस आपके सामने रखता हूँ। एक ये वाला है, इसके बीच में बॉल को गिराते हैं नीचे, इसमें तो नहीं आएगा ये, चल व्हाटएवर। एक बॉल नीचे गिर रहा है और एक बॉल ऊपर जा रहा है, ठीक है, और जो नीचे गिर रहा है उसकी डायरेक्शन बनाते हैं, इट्स डाउनवर्ड, और जो ऊपर जा रहा है उसकी डायरेक्शन बनाते हैं, इट्स गोइंग अपवर्ड। ये जो अपवर्ड है ये कहाँ तक पहुँच जाता है, ये यहाँ पे पहुँच जाता है, ऑलराइट, और जो डाउनवर्ड वाला है वो यहाँ पे पहुँच जाता है। ओके, सो लेट्स टेक द केस फर्स्ट हेयर। इस केस को लेते हैं। इसमें जो हाइट बेसिकली इन्वॉल्व हुई है, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। ये हमारे पास आई है 10 मीटर्स, ठीक है। इसका मास है हमारे पास 2 kg, फाइन। और हमने इसको जिस स्पीड से भेजा है दैट इज v, and v is equal to 2 meter per second. Let's calculate its initial kinetic energy, जिससे इसको ऊपर फेंका गया, that is half mv square. So the results comes out 1/2, mass is 2, speed is 2 square, that makes 4 2 square, that makes 4 joule. Now 4 joule इसके पास एनर्जी थी जिससे ये ऊपर जाना शुरू हुआ। अब ये जो अब मैं हाइट, बेसिकली मैंने क्वेश्चन चेंज किया, मैं हाइट को इधर से रब करता हूँ। ऑलराइट 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 ऑलराइट, ओके फाइन। ये जब अपने हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो इसकी स्पीड रुक जाएगी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये इसका हाईएस्ट पॉइंट था,
यहाँ पर ये रुक गई, इसकी स्पीड ज़ीरो होगी, जिसकी वजह से इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो भी ज़ीरो होगी। तो ये जो 4 जूल एनर्जी थी ये गई किधर, ये चूँकि ग्रेविटी के अगेंस्ट इसने काम किया है तो इसमें एज अ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गया, दैट इज इक्वल टू 4 जूल। ठीक है, तो जब ये 4 जूल है आपके पास, ऑलराइट, तो इसने फिर हाइट कितनी गेन की है इसको सॉल्व कर लेते हैं। मैस है आपके पास 2, ये आपके पास है 10 और टोटल दैट इज 4 जूल। तो हाइट आपके पास आ जाती है 4/20 विच इज 0.2 मीटर। ये अगर आप इसको 2 मीटर पर सेकंड से फेंकेंगे तो ये आपके सामने 0.2 मीटर ऊपर राइज करेगी। ठीक है, और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो गई यहाँ पर कंप्लीटली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के अंदर, वो ये एनर्जी इसके अंदर स्टोर है। अब अगर हम इस बॉल को रिलीज करें तो इसके पास इस वक्त स्टोर्ड एनर्जी है mgh 4 जूल। जब ये यहां पर जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड होगी तो ये अपनी 0.2 मीटर हाइट खत्म कर चुका होगा बॉल, ये इसकी हाइट है 0.2 मीटर। ठीक है, तो यहां पर इसकी सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी खत्म हो जाएगी, क्योंकि हाइट 0 होने से mgh आपका 0 हो गया। तो सारी की सारी एनर्जी जो 4 जूल थी ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसको कहते हैं एक दूसरे में कन्वर्ट होना। काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट होती है जब बॉल नीचे से ऊपर जाता है, एंड पोटेंशियल इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक व्हेन द बॉल इज रिलीज फ्रॉम सम हाइट, इट लूजेस हाइट एंड गेन स्पीड। वन, ये एक एनर्जी लूज कर रहा है और दूसरी गेन कर रहा है। ठीक है, इसको एक सिंपल वे में ऐसे भी अंडरस्टैंड किया जा सकता है कि अगर टोटल एनर्जी 4 जूल है और काइनेटिक एनर्जी 0 है तो टोटल एनर्जी देखें ऐसे होती है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस GPE, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, फाइन। टोटल एनर्जी अगर 4 जूल है टॉप पोजीशन पे, काइनेटिक 0 थी क्योंकि आप रुके हुए थे, स्पीड नहीं थी, देन दिस इज 4। अब जो आप मूव करना शुरू करेंगे तो ये रिड्यूस होगी बिकॉज द हाइट इज रिड्यूसिंग, और ये थोड़ी थोड़ी राइज होगी, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट 4। एंड देन ऐसे ऐसे चलता जाएगा, और फिर एट द बॉटम सारी की सारी काइनेटिक होगी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, और जब इसने हिट कर लिया ग्राउंड को तो ये रुक जाएगा और सारी एनर्जी ये हीट एंड साउंड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। लेकिन टॉपिक जो है वो हमारा है काइनेटिक का पोटेंशियल में कन्वर्ट होना और पोटेंशियल का काइनेटिक के अंदर कन्वर्ट होना। ठीक है, दिस इज ओवर करंट टॉपिक जिसको हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, और दोबारा से जरा इसको देख लेते हैं। ये हाईएस्ट पॉइंट, ये लोवेस्ट पॉइंट। लोवेस्ट पॉइंट पे KE आपकी मैक्स होती है क्योंकि आपके पास हाइट नहीं होती, और GPE आपकी मिनिमम विच इज ऑलमोस्ट 0। हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर GPE मैक्स होती है, और KE अगर आप रुके हुए हैं तो वो ऑलमोस्ट मिनिमम या 0 ये हो सकता है। बीच में आपके पास दोनों वैल्यूज हो सकती हैं, बट द टोटल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट विच इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, इसको इधर हम एक पेंडुलम की फॉर्म में भी पढ़ सकते हैं। एक पेंडुलम जब इधर है तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है, इधर है तो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे है। हाईएस्ट पॉइंट पे उसका GPE मैक्स है, वो रुक जाता है तो KE उसका 0 है। मिडिल पॉइंट के ऊपर उसकी हाइट खत्म हो जाती है तो KE मैक्स हो जाती है, और GPE आपकी 0 हो जाती है। फिर हाइट पे चला जाता है तो GPE मैक्स हो जाती है और काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। इस बीच में
काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ये उसकी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे और हाइट्स फाइंड आउट करना और स्पीड फाइंड आउट करना, ये हम इससे सीखेंगे कि जी हाइट कैसे फाइंड आउट की जाती है, स्पीड कैसे फाइंड आउट की जाती है अगर आपको काइनेटिक या पोटेंशियल में से एक एनर्जी गिवन हो। इससे रिलेटेड और भी कई बातें जो हम अपने नेक्स्ट लेसन के साथ इसको देखेंगे। बेटा ये नोट्स भी मैं आपको भेज रहा हूँ, आप इसका रिकॉर्डेड लेसन भी देखिएगा। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट क्लास में आप आएंगे तो इसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।